In legal parlance, Maine would be called a closely held corporation. Roughly 5% of its 2,000 employees owned the company. These were referred to as partners or associates, and their position was coveted. Not only did the partners have power over everyone else, but also they made the big bucks. Discretion was their hallmark. They dealt with heads of states and other chief executive officers who expect their consultants, like their attorneys and psychotherapists, to honor a strict code of absolute confidentiality. Talking with the press was taboo. It was simply not tolerated. As a consequence, hardly anyone outside Maine had ever heard of us, although many were familiar with our competitors, such as Arthur D. Little, Stone and Webster, Brown and Root, Halliburton and Bechtel. कानूनी ज़बान में मेन को करीब से मुनक्कद कॉरपोरेशन कहा जाएगा। इसके 2000 मुलाजमीन में से तकरीबन 5% कंपनी के मालिक थे। उनको शराकतदार या साथियों के तौर पर कहा जाता था और उनकी पोजीशन की ख्वाहिश की जाती थी। ना सिर्फ शराकतदारों को हर एक पर ताकत हासिल थी, बल्कि इन्होंने बड़ी रकम भी कमाई। विजडम और होशमंदी इनकी पहचान थी। ये दीगर सरबराहान मुमलिकत और दीगर चीफ एग्जेक्टिव अफसरान के साथ डील करते थे, और ये अपने कंसल्टेंट से तवक्को करते थे कि ये इनके अटॉर्नीज़, इनके वकील और इनके साइकोथेरेपिस्ट की तरह ये भी एक मुकम्मल राजदारी के सख्त ज़ाब्ते का एहतराम करेंगे। और प्रेस से बात करना बिल्कुल ममनू था, ये बर्दाश्त ही नहीं किया जाता था। उसका नतीजा ये था कि मेन से बाहर शायद ही किसी ने हमारे बारे में सुना हो, हालांकि बहुत से लोग हमारे हरीफों से वाकिफ़ थे, जैसे कि आर्थर डी लिटल, स्टोन एंड वेबस्टर, ब्राउन एंड रूट, हेल्बर्टन और बेस्टल। I use the term competitor loosely because, in fact, Maine was in a league by itself. The majority of our professional staff was engineers, yet we owned no equipment and never constructed so much as a storage shed. Many Mainers were ex military. However, we did not contract with the Department of Defense or with any of the military services. Our stock in trade was something so different from the norm that during my first months there, even I could not figure out what we did. I knew only that my first real assignment would be in Indonesia and that I would be part of an 11-man team sent to create a master energy plan for the island of Java. मैं कंपेटिटर की जो टर्म है इसको ढीले तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हकीकत में मेन खुद ही एक लीग में था। यानी मैं जो कंपेटिटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको तो मैं एम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेन थी उसके तो पैरेलल और उसके कंपटीशन में तो कोई था ही नहीं। वो इतनी एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारा जो प्रोफेशनल स्टाफ था उसकी अक्सरियत इंजीनियर्स की थी। फिर भी हमारे पास कोई सामान नहीं था और ना ही हमने स्टोरेज शेड जितना तामीर किया था। बहुत से मेनर्स साबिक फ़ौजी थे, ताहम हमने महकमा दिफा या किसी भी फ़ौजी खिदमात के साथ कोई मुआहदा नहीं किया था। हमारा स्टॉक इन ट्रेड मामूल से इतना मुख्तलिफ था, यानी कि ऐसे प्राइमरी एसेट्स और रिसोर्सेज जिन पे मेन रिलाई करता था वो इतनी मुख्तलिफ थी कि मेरे पहले महीनों के दौरान में भी मैं ये नहीं जान सका कि हमने किया क्या। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरी पहली हकीकी असाइनमेंट इंडोनेशिया में होगी, और ये कि मैं 12 लोगों की टीम के साथ उस जजीरे पर जाऊंगा और वहाँ पे मैंने एक मास्टर एनर्जी प्लान क्रिएट करना है जावा के जजीरे पे। I also knew that Einar and others who discussed the job with me were eager to convince me that Java's economy would boom, and that if I wanted to distinguish myself as a good forecaster and to therefore be offered promotions, I would produce projections that demonstrated as much. Right off the chart, Einar liked to say he would glide his fingers through the air and up over his head, an economy that will soar like a bird. Einar took frequent trips that usually lasted only 2 to 3 days. No one talked much about them or seemed to know where he had gone. When he was in the office, he often invited me to sit with him for a few minutes over coffee. He asked about Anne, our new apartment, and the cat we had brought with us from Ecuador. मैं ये भी जानता था कि एनर और दूसरे जिन्होंने मुझसे काम पर तबादला ख्याल किया था, मुझे इस बात पर कायल करने के लिए बेचैन थे कि जावा की मईशत में तेज़ी आएगी, और ये कि अगर मैं अपने आप को एक अच्छे पेशन गोई करने वाले के तौर पर मुमताज़ कराना चाहता हूँ तो मैं ऐसे तख्मियाँ पेश करूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर होंगे, और यही चीज़ इसीलिए इसी चीज़ से मेरी प्रमोशंस की पेशकश की जाएगी। राइट ऑफ द चार्ट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो।
फार बियॉन्ड द नॉर्म्स हो। तो अगर एनर होता तो वो इस चीज़ को राइट ऑफ द चार्ट कहता। वो अपनी उंगली को इस तरह हवा में ग्लाइड करता और फिर सर के ऊपर हाथ फेरता और कहता कि ये जो इकॉनमी है ये एक बर्ड की तरह फ्लाई करेगी। यानी मुझे कन्विंस करने के लिए वो इस तरह कहता। आयनर अक्सर ट्रिप्स पे जाता था जो कि 2 और 3 दिन तक रहते थे, और कोई भी उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही कुछ जानना चाहता था कि वो कहाँ जाता था। जब वो ऑफिस में होता था तो वो अक्सर मुझे बुलाता था कि मैं उसके साथ कुछ मिनट्स गुजारूं कॉफ़ी पे, और वो एन के बारे में बात करता, हमारे नए अपार्टमेंट के बारे में बात करता और उस बिल्ली के बारे में बात करता जो हम इक्वाडोर से लाए थे। I grew bolder as I came to know him better, and I tried to learn more about him and what I would be expected to do in my job. But I never received answers that satisfied me. He was a master at turning conversations around. On one such occasion, he gave me a peculiar look. You need not worry, he said. We have high expectations for you. I was in Washington recently. His voice trailed off and he smiled inscrutably. In any case, you know we have a big project in Kuwait. It will be a while before you leave for Indonesia. I think you should use some of your time to read up on Kuwait. The Boston Public Library is a great resource, and we can get you passes to the MIT and Harvard libraries. जब मैं उसे बेहतर तौर पर जानता गया तो मैं और ज़्यादा दिलेर होता गया और मैंने उसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की, और मैं अपने काम में मुझसे क्या करने की तवक्को की जाएगी मैंने ये भी जानने की कोशिश की। लेकिन मुझे कभी भी ऐसे जवाब नहीं मिले जो मुझे मुतमईन करते। वो बात का रुख मोड़ने में माहिर था। ऐसे ही एक मौका पर उसने मुझे एक अजीब व गरीब शक्ल से देखा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। हमें तुमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। मैं हाल ही में वाशिंगटन में था। उसकी आवाज़ बंद होगी और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। किसी भी सूरत में आपको मालूम है कि हमारे पास कुवैत में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको इंडोनेशिया रवाना होने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे ख़्याल में आपको अपना कुछ वक़्त कुवैत पर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी एक बेहतरीन ज़रिया है पढ़ने के लिए, और हम आपको MIT और हार्वर्ड लाइब्रेरीज़ के पासेस भी दे सकते हैं। After that, I spent many hours in those libraries, especially in the BPL, which was located a few blocks away from the office and very close to my Back Bay apartment. I became familiar with Kuwait as well as with many books on economic statistics published by the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), and the World Bank. I knew that I would be expected to produce econometric models for Indonesia and Java, and I decided that I might as well get started by doing ones for Kuwait. However, my BS in business administration had not prepared me as an econometrician, so I spent a lot of time trying to figure out how to go about it. I went so far as to enroll in a couple of courses on the subject. In the process, I discovered that statistics can be manipulated to produce a large array of conclusions, including those substantiating the predilections of the analyst. उसके बाद मैंने उन लाइब्रेरीज़ में ख़ास तौर पर कई घंटे गुजारे। BPL जो दफ्तर से चंद ब्लॉक्स के फासले पर और मेरे बैक बे अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब वाक़या था। मैं कुवैत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से शाया होने वाली इक़्तिसादी एदाद-ओ-शुमार पर बहुत सी किताबों से भी वाकिफ़ हुआ। मैं जानता था कि मुझसे इंडोनेशिया और जावा के लिए इकोनोमेट्रिक मॉडल तैयार करने की तवक्को की जाएगी, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी कुवैत के लिए एक काम शुरू कर सकता हूँ। ताहम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे BS ने मुझे माहिर मुआशियात के तौर पर तैयार नहीं किया था, इसलिए मैंने ये जानने की कोशिश में काफ़ी वक्त सर्व किया कि इसके बारे में कैसे जानना है। मैं इस मौजू पर 1-2 कोर्सेज़ में दाखिला लेने के लिए इस हद तक चला गया। इस अमल में मैंने दरियाफ्त किया कि अदाद-ओ-शुमार को मुख्तलिफ नताइज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल वो नताइज जो तज्ज़िया निज़ार की पेशन गोइयों को साबित करते हैं। Maine was a macho corporation. There were only 4 women who held professional positions in 1971. However, there were perhaps 200 women divided between the cadres of personal secretaries. Every vice president and department manager had one, and the stenopole, which served the rest of us. I had become accustomed to this gender bias, and I was therefore especially astounded by what happened one day in the BPL's reference section. मेन एक माचू कॉरपोरेशन थी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मेल मेंबर्स काम करते थे। सिर्फ 4 ख़वातीन थीं जो 1971 में पेशा वराना ओहदों पर फाइज थीं।
ताहम पर्सनल सेक्रेटरीज के केजर के दरमियान शायद 200 ख़वातीन तकसीम थीं। हर नायब सदर और डिपार्टमेंट मैनेजर के पास एक खातून थी और स्टीनोपोल जो हम में से बाकी लोगों की खिदमत करती थी। स्टीनोपोल स्टीनोग्राफर्स होती हैं जो शॉर्ट हैंड्स में एक्सपर्ट होती हैं, जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस को एब्रीवेशंस की फॉर्म में लिखती हैं। ओके, मैं इस जेंडर बायस, इस सनफी तासुब का आदी हो चुका था और इसलिए बीपीएल के हवाला सेक्शन में एक दिन जो कुछ हुआ उससे मैं ख़ास तौर पर हैरान रह गया था। An attractive brunette woman came up and sat in a chair across the table from me. In a dark green business suit, she looked very sophisticated. I judged her to be several years my senior, but I tried to focus on not noticing her, on acting indifferent. After a few minutes, without a word, she slid an open book in my direction. It contained a table with information I had been searching for about Kuwait, and a card with her name, Claudine Martin, and her title, Special Consultant to Charles T. Main INC. I looked up into her soft green eyes, and she extended her hand. I've been asked to help you in your training, she said. I could not believe this was happening to me. एक पुरकशिश डार्क ब्राउन औरत आई और एक कुर्सी पर बैठ गई बिल्कुल मेरे सामने, टेबल के सामने। अपने गहरे सब्ज़ बिजनेस सूट में वो बहुत नफीस लग रही थी, बहुत कल्चर्ड लग रही थी। मैंने उसे अपने से कई साल सीनियर समझा, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो ना देने और लाताल्लुकी से काम करने पर तवज्जो मरकूज़ की कोशिश की मैंने। चंद मिनटों के बाद बगैर किसी लफ्ज़ के उसने एक खुली किताब मेरी सहमत फैलाई, हल्का सा स्लाइड करके उसकी तरफ की। उस किताब में एक टेबल बना हुआ था जिसमें वो इन्फॉर्मेशन कुवैत के बारे में लिखी हुई थी जो कि मैं ढूंढ रहा था, और एक कार्ड था साथ जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, क्लॉडिन मार्टिन, और साथ उसका टाइटल, स्पेशल कंसल्टेंट टू चार्ल्स टी मेन आईएनसी। मैंने उसकी नरम सब्ज आंखों में देखा और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे आपकी तरबियत में मदद करने को कहा गया है, उसने मुझसे कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। Beginning the next day, we met in Claudine's Beacon Street apartment, a few blocks from Maine's Prudential Center headquarters. During our first hour together, she explained that my position was an unusual one and that we needed to keep everything highly confidential. She told me that no one had given me specifics about my job because no one was authorized to, except her. Then she informed me that her assignment was to mold me into an economic hitman. The very name awakened old cloak and dagger dreams. I was embarrassed by the nervous laughter I heard coming from me. She smiled and assured me that humor was one of the reasons they used the term. Who would take it seriously? She asked. I confessed ignorance about the role of economic hitman. You are not alone. She laughed. We are a rare breed in a dirty business. No one can know about your involvement, not even your wife. Then she turned serious. I'll be very frank with you, teach you all I can during the next weeks. Then you'll have to choose. Your decision is final. अगले दिन हम क्लॉडेंस के बीकन स्ट्रीट अपार्टमेंट में मिले, जो कि मेंस के प्रूडेंशियल सेंटर हेडक्वार्टर से कुछ ब्लॉक्स के फासले पर था। हमारी मुलाकात के पहले घंटे में उसने मुझे वजाहत दी कि मेरी पोजीशन एक गैर मामूली थी और हमें हर चीज़ को इंतहाई खुफिया रखने की ज़रूरत है। उसने मुझे बताया कि किसी ने मुझे मेरे काम के बारे में तफसीलात नहीं बताई क्योंकि इसके अलावा, यानी क्लॉडिन के अलावा, किसी को भी उसका इख्तियार नहीं था। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी असाइनमेंट मुझे मुआशी तौर पर एक इकोनॉमिक हिटमैन में ढालना है उसने मुझे। इस नाम ने मेरे अंदर मेरे पुराने जो डरावने ख्वाब थे वो जगाए। मैं शर्मिंदा था उस घबराहट वाली हंसी से जो मैंने अपने अंदर से आती सुनी। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और मुझे यकीन दिलाया कि मज़ा है, मज़ा उन वजूहात में से एक है जिसकी वजह से हम ये टर्म यूज़ करते हैं इकोनॉमिक हिटमैन की। हु वुड टेक इट सीरियसली? इसको संजीदगी से कौन लेगा? उसने पूछा। मैंने इकोनॉमिक हिटमैन के किरदार के बारे में लाताल्लुकी का इजहार किया। उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो। वो हंसी। हम एक नायाब नस्ल हैं। इस गंदे कारोबार में कोई भी आपके मुलव्वस होने के बारे में नहीं जान सकता, यहाँ तक कि आपकी बीवी को भी नहीं पता चलेगा। फिर वो संजीदा होगी। मैं आपके साथ बहुत बेतकल्लुफ़ रहूँगी। अगले हफ्तों में मैं आपको वो सब सिखाऊंगी जो मैं कर सकती हूँ। फिर आपको इंतखाब करना पड़ेगा। आपका फ़ैसला हतमी होगा। Once you are in for life. After that, she seldom used the full name.
We were simply economic hitmen. I know now what I did not then. The Claudine took full advantage of the personality weaknesses the NSA profile had disclosed about me. I do not know who supplied her with the information, either the NSA, Maine's personal department, or someone else. Only that she used it masterfully. Her approach, a combination of physical seduction and verbal manipulation, was tailored specifically for me, and yet it fit within the standard operating procedures. I have since seen used by a variety of businesses when the stakes are high and the pressure to close lucrative deals is great. एक बार जब आप इस काम के अंदर आ जाते हैं तो आप फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आ जाते हैं इसमें। इसके बाद वो शाज़ो नादर ही पूरा नाम इस्तेमाल उसने किया मेरा। हम सिर्फ EHM थे, इकोनॉमिक हिटमैन थे। अब मैं जानता हूँ कि मैंने उस वक़्त क्या नहीं किया था, कि क्लाइडन ने शख्सियत की कमज़ोरियों का पूरा फ़ायदा उठाया जो NSA प्रोफ़ाइल ने मेरे बारे में ज़ाहिर की थी। मैं नहीं जानता था कि उसे ये मालूमात किसने फ़राहम की, NSA, मेन का अमला या महकमा या कोई और। सिर्फ ये कि उसने इसे महारत से इस्तेमाल किया। उसका नुक्ता नज़र जिस्मानी बहकावे और ज़बानी हेरा फेरी का मजमूआ ख़ास तौर पर मेरे लिए तैयार किया गया था, और फिर भी ये मयारी ऑपरेटिंग तरीका कार के अंदर फिट बैठता है, जिसे मैंने तब से देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। जब स्टेक्स हाई हो, जब प्रोफेशनल शेयर हाई हो और अच्छे डील्स को जल्दी क्लोज करने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो। She knew from the start that I would not jeopardize my marriage by disclosing our clandestine activities. And she was brutally frank when it came to describing the shadowy side of things that would be expected of me. I have no idea who paid her salary, although I have no reason to suspect it was not. As her business card implied, Maine, at that time, I was too naive, intimidated, and bedazzled to ask the questions that today seem so obvious. वो शुरू से जानती थी कि मैं अपनी खुफिया सरगर्मियों को जाहिर करके अपनी शादी को खतरे में नहीं डालूंगा, और जब बात इन चीज़ों के सायादार पहलू को बयान करने की हो जिसकी मुझसे तवक्को की जाएगी तो वो बेदर्दी से बेतकल्लुफ़ थी। मुझे नहीं मालूम कि उसकी तनख्वाह किसने अदा की, हालांकि मुझे शक करने की कोई वजह नहीं पता, और ऐसा नहीं था जैसा कि उसके बिजनेस कार्ड का मतलब है। मैं उस वक़्त मैं बहुत भोला, खौफज़दा और ऐसे सवालात पूछने के लिए हैरान था जो आज बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं। My job, she said, was to forecast the effects of investing billions of dollars in a country. Specifically, I would produce studies that projected economic growth 20 to 25 years into the future and that evaluated the impacts of a variety of projects. For example, if a decision was made to lend a country $1 billion to persuade its leaders not to align with the Soviet Union, I would compare the benefits of investing that money in power plants with the benefits of investing in a new national railroad network or a communication system. Or I might be told that the country was being offered the opportunity to receive a modern electric utility system, and it would be up to me to demonstrate that such a system would result in sufficient economic growth to justify the loan. उसने कहा, मेरा काम किसी मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के असरात की पेशगोई करना था। ख़ास तौर पर मैं ऐसे मुतालियात पेश करूँगा जिसमें मुस्तकबिल में 20 से 25 साल तक मुआशी तरक्की का अंदाज़ा लगाया गया हो और जिसने मुख्तलिफ मंसूबों के असरात का जायज़ा लिया हो। मिसाल के तौर पर, अगर किसी मुल्क को $1 बिलियन कर्ज देने का फ़ैसला किया गया ताकि उसके लीडरों को सोवियत यूनियन के साथ इत्तेहाद ना करने पर आमादा किया जा सके, तो मैं पावर प्लांट्स में इस रकम की सरमायाकारी के फ़वाइद का मुआजना नए कौमी रेल रोड या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में सरमायाकारी के फ़वाइद से करूँगा। या मुझे कहा जा सकता है कि मुल्क को एक जदीद इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सिस्टम हासिल करने का मौका फ़राहम किया जा रहा है, और ये मुझ पर मुनहसर है कि मैं ये ज़ाहिर करूँ कि इस तरह के निज़ाम के नतीजे में कर्ज़ के हसूल के लिए काफ़ी इक़्तिसादी तरक्की होगी। यानी कर्ज़ तो उस मुल्क को हम देंगे, लेकिन हमने उनको जस्टिफ़ाई करना है कि हमने ये कर्ज़ क्यों दिया है, तो उनको हमने ये चीज़ें बतानी है कि हमने उनको इस पे हम पे मुनहसर है, इन इकोनॉमिक हिटमैन पे मुनहसर है कि हम उनको किस तरह ये ज़ाहिर कराएंगे कि ये जो आपको हम चीज़ें दे रहे हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद किस तरह है। सारा कुछ उस लोन को जस्टिफाई करने के लिए करना है जो हमने उन लीडर्स को दिया है कि वो सोवियत यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात ना बनाए। द क्रिटिकल फैक्टर in every case was gross national product,
the project that resulted in the highest average annual growth of GNP won. If only one project was under consideration, I would need to demonstrate that developing it would bring superior benefits to the GNP. The unspoken aspect of every one of these projects was that they were intended to create large profits for the contractors and to make a handful of wealthy and influential families in the receiving countries very happy, while assuring the long term financial dependence and therefore the political loyalty of governments around the world. The larger the loan, the better. The fact that the debt burden placed on a country would deprive its poorest citizens of health, education, and other social services for decades to come was not taken into consideration. अहम फैक्टर हर मामले में मजमूई कौमी पैदावार थी। वो प्रोजेक्ट जीत जाता था जिसके नतीजे में जीएनपी की सबसे ज़्यादा सालाना एवरेज सालाना ग्रोथ हासिल होती थी। अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट ज़ेरे गौर था तो मुझे ये जाहिर करने की ज़रूरत होगी कि उसे तैयार करने से जीएनपी को आला फ़वाइद हासिल होंगे। उनमें से हर एक प्रोजेक्ट का गैर वाजिया पहलू ये था कि उनका मकसद ठेकेदारों के लिए बड़ा मुनाफा कमाना और वसूल करने वाले ममालिक में मुट्ठी भर दौलतमंद और बाअसर ख़ानदानों को बहुत खुश करना था। तवील मुद्दती माली इन्हिसार और इस वजह से दुनिया भर की हुकूमतों की सियासी वफादारी को यकीनी बनाते हुए कर्ज जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर है। इस हकीकत पर गौर नहीं किया गया कि किसी मुल्क पर कर्जों का बोझ उसके गरीब तरीन शहरियों को आने वाली दहाइयों तक सेहत, तालीम और दीगर समाजी खिदमात से महरूम कर देगा। Claudine and I openly discussed the deceptive nature of GNP. For instance, the growth of GNP may result even when it profits only one person, such as an individual who owns a utility company, and even if the majority of the population is burdened with debt. The rich get richer and the poor grow poorer. Yet, from a statistical standpoint, this is recorded as economic progress. Like US citizens in journal, most main employees believed we were doing country's favors when we built power plants, highways and ports. Our schools and our press have taught us to perceive all of our actions as altruistic. Over the years, I have repeatedly heard comments like, if they are going to burn the US flag and demonstrate against our embassy, why don't we just get out of their damn country and let them wallow in their own poverty? क्लॉडिन और मैंने जीएनपी की फ़रेबकारी की नौयत पर खुलेआम गुफ्तगू की। मिसाल के तौर पर जीएनपी की ग्रोथ का नतीजा उस वक़्त भी हो सकता है जब ये सिर्फ एक शख्स को मुनाफा बख्शता है, जैसे किसी फ़र्द को जो यूटिलिटी कंपनी का मालिक है, और यहाँ तक कि अगर आबादी की अक्सरियत कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है। अमीर अमीर तर हो जाते हैं और गरीब गरीब तर हो जाते हैं। फिर भी मुआशी पेशरफ्त के तौर पर इसको एक इकनॉमिक प्रोग्रेस कहा जाता है कि ये एक इकनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, मुआशी तरक्की हुई है। आम तौर पर अमरीकी शहरियों की तरह ज़्यादातर जो मेन के मुलाजमीन थे उनका भी ख्याल यही था कि जब हम पावर प्लांट, शाहराहों और बंदरगाहों की तामीर करते हैं तो हम ममालिक के हक़ में होते हैं। हमारे स्कूलों और हमारी प्रेस ने हमें अपने तमाम अमाल को इनके तमाम अमाल को पुरजोश समझने की तालीम दी है। बरसों तक बहुत दफ़ा मैंने ये कमेंट्स सुने हैं कि अगर वो यूएस का फ्लैग बर्न करने जा रहे हैं और हमारी एम्बेसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने जा रहे हैं, तो हम उनकी इस कंट्री से निकल क्यों नहीं जाते? हम उनकी इस कंट्री से निकल जाते हैं और उनको उनकी गुर्बत में डूबने देते हैं। People who say such things often hold diplomas certifying that they are well educated. However, these peoples have no clue that the main reason was establish embassies around the world is to serve our own interests, which during the last half of the 20th century meant turning the American Republic into a global empire. Despite credentials, such people are as uneducated as those 18th century colonists who believed that the Indians fighting to defend their lands were servants of the devil. Within several months, I would leave for the island of Java in the country of Indonesia, described at that time as the most heavily populated piece of real estate on the planet. जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वो अक्सर अपने पास डिप्लोमा रखते हैं जो तस्दीक करता है कि ये तालीम याफ्ता है, आला तालीम याफ्ता है। तो हम उन लोगों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमने दुनिया भर में सफारत खाने कायम करने की बुनियादी वजह अपने मफादात को पूरा करना है, जिसका मतलब
20वीं सदी के आखिरी नस्फ में अमेरिकी जमहूरिया को एक आलमी सल्तनत में तब्दील करना था। डिग्रीज के बावजूद ऐसे लोग उतने ही अनपढ़ हैं जितने 18वीं सदी के नौ आबादियाती लोग, जो ये समझते थे कि अपनी सरजमीन के दिफा के लिए लड़ने वाले हिंदुस्तानी शैतान के बंदे हैं। कई महीनों के अंदर मैं जावा के जजीरे के लिए रवाना हो जाऊंगा। इंडोनेशिया का मुल्क, जिसे उस वक़्त करह अर्ज पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला रियल एस्टेट के तौर पर बयान किया गया था, वहाँ चला जाऊंगा। Indonesia also happened to be an oil-rich Muslim nation and a hotbed of communist activity. इंडोनेशिया तेल की दौलत से माला माल मुस्लिम मुल्क और कम्युनिस्ट सरगर्मियों का गढ़ भी रहा है। It's the next domino after Vietnam, is the way Claudine put it. We must win the Indonesians over. If they join the communist bloc, well, she drew a finger across her throat and then smiled sweetly. Let's just say you need to come up with a very optimistic forecast of the economy, how it will mushroom after all the new power plants and distribution lines are built. That will allow US aid and the international banks to justify the loans. You'll be well rewarded, of course, and can move on to other projects in exotic places. The world is your shopping cart. She went on to warn me that my role would be tough. Experts at the banks will come after you. It's their job to punch holes in your forecasts. That's what they are paid to do. Making you look bad makes them look good. हमें इंडोनेशियंस के एतमाद को जीतना चाहिए। अगर वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो जाएं तो ठीक है। उसने अपने गले में उंगली फेरी और फिर मीठा सा मुस्कराई। चलो बस ये कहूँ कि आपको मईशत के बारे में एक बहुत ही पुरउम्मीद पेश गोई के साथ आने की ज़रूरत है कि तमाम नए पावर प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की तामीर के बाद ये किस तरह फैलेगी आपकी पेशन गोई। ये यूएस एड और बैनुल अक़वामी बैंकों को कर्ज़ों का जवाज़ फराहम करने की इजाज़त देगी। यकीनन आपको अच्छी तरह से इनाम दिया जाएगा और गैर मुल्की जगहों पर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर जा सकते हैं आप। दुनिया आपकी ख़रीदारी की टोकरी बन जाएगी। उसने मुझे आगाह किया, वार्न किया कि मेरा किरदार सख्त होगा। बैंकों के माहिरीन आपके पीछे आएंगे। ये उनका काम है कि वो आपकी पेशन गोइयों में सुराख करें जिसके लिए उन्हें अदायगी की जाती है। आपको बुरा दिखाने से वो अच्छे लगते हैं। One day, I reminded Claudine that the main team being sent to Java included 10 other men. I asked if they all were receiving the same type of training as me. She assured me they were not. They're engineers, she said. They design power plants, transmission and distribution lines, and seaports and roads to bring in the fuel. You are the one who predicts the future. Your forecasts determine the magnitude of the system they design and the size of the loans. You see, you are the key. Every time I walked away from Claudine's apartment, I wondered whether I was doing the right thing. Somewhere in my heart, suspected I was not. But the frustration of my past haunted me. Maine seemed to offer everything my life had lacked. And yet I kept asking myself if Tom Paine would have approved. In the end, I convinced myself that by learning more, by experiencing it, I could better expose it later. The old working from the inside justification. एक दिन मैंने क्लॉडिन को याद दिलाया कि मेन टीम को जावा जिसको भेजा जा रहा था उसमें 10 दूसरे आदमी भी शामिल थे। मैंने पूछा कि क्या वो सभी मेरी तरह की तरबियत हासिल कर रहे हैं। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो नहीं कर रहे। वो पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और बंदरगाहों और सड़कों को डिज़ाइन करते हैं और ईंधन लाने के लिए रोड्स बनाते हैं। आप ही वाहिद हैं जो मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं। आपकी पेशनगोइयाँ उनके डिज़ाइन करदा सिस्टम्स की वसअत और कर्ज़ों के साइज़ का तयन करती हैं। देखो, तुम ही क्लीद हो। हर बार जब मैं क्लाइडन के अपार्टमेंट से दूर जाता था, मैं सोचता था कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। मेरे दिल में कहीं शक था कि मैं ये सही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे माजी की मायूसियों ने मुझे सताया हुआ था। ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी और फिर भी मैं अपने आप से पूछता रहा कि क्या टॉम पेन को मंजूर होता मेरा ये सब करना। आखिर में मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मज़ीद सीख कर इसका तजर्बा करके मैं इसे बाद में बेहतर तरीके से बेनकाब कर सकता हूँ।
ये एक पुराना जवाब है जो हम अपने आप को कोई काम करने पर आमादा करने के लिए देते हैं। When I shared this idea with Claudine, she gave me a perplexed look. Don't be ridiculous. Once you are in, you can never get out. You must decide for yourself before you get in any deeper. I understood her, and what she said frightened me. After I left, I strolled on Commonwealth Avenue, turned onto Dartmouth Street, and assured myself that I was the exception. One afternoon, some months later, Claudine and I sat in a window settee watching the snow fall on Beacon Street. We are a small, exclusive club, she said. We are paid, well paid, to cheat countries around the globe out of billions of dollars. A large part of your job is to encourage world leaders to become part of a vast network that promotes US commercial interests. In the end, those leaders become ensnared in a web of debt that ensures their loyalty. We can draw on them whenever we desire to satisfy our political, economic, or military needs. In turn, these leaders bolstered their political positions by bringing industrial parks, power plants, and airports to their people. Meanwhile, the owners of US engineering and construction companies become very wealthy. जब मैंने क्लॉडिन से ये ख्याल अपना शेयर किया तो उसने मुझे एक परेशान कुन नज़र से देखा। मुज़ेख़ा ख़ेज़ मत बनो। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं इस काम के तो आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। किसी भी गहराई में जाने से पहले आपको अपने बारे में खुद फैसला करना होगा। मैं उसकी बात समझ गया था और जो उसने कहा था ना उसने मुझे डरा दिया था। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं कॉमनवेल्थ एवेन्यू में टहला और डार्टमर्थ स्ट्रीट की तरफ मुड़ा और ख़ुद को यकीन दिलाया कि मैं इससे इस मुस्तस्ना हूँ, यानी कि मैं एक्सेप्शन हूँ। मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं बाकियों से अलग हूँ और डिफरेंट हूँ। कुछ महीनों बाद एक दोपहर मैं और क्लाइडन एक खिड़की में एक छोटे सोफे पर बैठकर बीकन स्ट्रीट पर बर्फ़ गिरते देख रहे थे। हम एक छोटा खुसूसी क्लब है, उसने कहा। हमें अरबों डॉलर में से दुनिया भर के ममालिक को धोखा देने के लिए अच्छी तनख्वाह दी जाती है। आपके काम का एक बड़ा हिस्सा आलमी रहनुमाओं को एक वसी नेटवर्क का हिस्सा बनने की तरगीब देना है जो अमरीकी तिजारती मफादात को फ़रोग़ देता है। आखिरकार वो रहनुमा कर्ज़ों के जाल में फंस जाते हैं जो इनकी वफादारी को यकीनी बनाते हैं। जब भी हम अपनी सियासी, इक़्तिसादी या फ़ौजी ज़रूरियात को पूरा करना चाहें तो हम इनकी तरफ मुतवज्जह हो सकते हैं। बदले में ये रहनुमा अपने लोगों के लिए सनती पार्क्स, पावर प्लांट्स और हवाई अड्डे लाकर अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करते हैं। और उसी दौरान अमरीकी इंजीनियरिंग और तामीराती कंपनियों के मालिकान बहुत अमीर हो जाते हैं। That afternoon, in the idyllic setting of Claudine's apartment, relaxing in the window while snow swirled around outside, I learned the history of the profession I was about to enter. Claudine described how throughout most of history, empires were built largely through military force or the threat of it. But with the end of World War II, the emergence of the Soviet Union, and the specter of nuclear holocaust, the military solutions became just too risky. The decisive movement occurred in 1951 when Iran rebelled against a British oil company that was exploiting Iranian natural resources and its people. The company was the forerunner of British Petroleum, today's BP. In response, the highly popular, democratically elected Iranian Prime Minister Mohammad Mosaddegh nationalized all Iranian petroleum assets. An outraged England sought the help of her World War II ally, the United States. However, both countries feared the military retaliation would provoke the Soviet Union into taking action on behalf of Iran. उस दोपहर को क्लाइडन के अपार्टमेंट के खूबसूरत माहौल में खिड़की में आराम करते हुए बाहर बर्फ़बारी के दौरान मैंने उससे उस पेशे की तारीख सीखी जिसमें मैं दाखिल होने वाला था। क्लाइडन ने बताया कि किस तरह पूरी तारीख में सल्तनतें बड़ी हद तक फ़ौजी ताकत या उसके ख़तरे के ज़रिए बनाई गईं, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे, सोवियत यूनियन के ज़हूर और न्यूक्लियर हॉलोकास्ट के मंजर के साथ फ़ौजी हल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। फैसला कुन लम्हा 1951 में आया जब ईरान ने एक बरतानवी तेल कंपनी के ख़िलाफ़ बगावत की जो ईरानी कुदरती वसाइल और उसके अवाम का इस्तेसाल कर रही थी। ये कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम की पेशरो थी जो आज का बीपी है। इसके जवाब में इंतहाई मकबूल जमहूरी तौर पर मुंतखब ईरानी वज़ीर
मोहम्मद मसदक ने तमाम ईरानी पेट्रोलियम असासों को नेशनलाइज्ड कर दिया। इस बात से इंग्लैंड को गुस्सा आ गया और उसने दूसरी जंग अज़ीम में अपने इत्तेहादी अमेरिका से मदद मांगी। ताहम दोनों ममालिक को खदशा था कि फ़ौजी जवाबी कार्रवाई सोवियत यूनियन को ईरान की जानब से कार्रवाई करने पर उकसाएगी। Instead of sending in the Marines, therefore, Washington dispatched CIA agent Kermit Roosevelt, Theodore's grandson. He performed brilliantly, winning people over through payoffs and threats. He then enlisted them to organize a series of street riots and violent demonstrations, which created the impression that Mossadegh was both unpopular and inept. In the end, Mossadegh went down and he spent the rest of his life under house arrest. The pro American Muhammad Raza Shah became the unchallenged dictator. Kermit Roosevelt had set the stage for a new profession, the one whose ranks I was joining. मेरीन्स को भेजने की बजाय वाशिंगटन ने सीआईए एजेंट कर्मिट रोजवेल्ट को भेजा। उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लोगों को मुआवजों और धमकियों के जरिए जीता। उसके बाद उसने उन्हें सड़कों पर होने वाले फसादात और पुरतशद्दुद मुजाहरों का एक सिलसिला मुनज़्ज़म करने के लिए शामिल किया, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि मुजाहिद गैर मकबूल और नाअहल दोनों था। उसके बाद मुजाहिद ज़ेरे ज़मीन चला गया और उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी गहरी नज़रबंदी में गुजारी। और जो प्रो अमेरिकन नवाज़ मोहम्मद रज़ा शाह, वो एक अनचैलेंज डिक्टेटर बन गया, उसको कोई हरा नहीं सकता था। कर्मिट रोजवेल्ट ने एक नए पेशे की मंजिल तय की थी, जिसकी सफ में मैं शामिल हो रहा था। Roosevelt's gambit reshaped Middle Eastern history even as it rendered obsolete all the old strategies for empire building. It also coincided with the beginning of experiments in limited non nuclear military actions, which ultimately resulted in US humiliations in Korea and Vietnam. By 1968, the year I interviewed with the NSA, it had become clear that if the United States wanted to realize its dream of global empire, as envisioned by men like Presidents Johnson and Nixon, it would have to employ strategies modeled on Roosevelt's Iranian example. This was the only way to beat the Soviets when the threat of nuclear war. रोजवेल्ट की चाल ने मशरिक वस्ता की तारीख को नई शक्ल दी। सल्तनत की तामीर के लिए तमाम पुरानी हिकमत अमलियों को मतरूक कर दिया गया। ये महदूद गैर जौहरी फ़ौजी इक़दामात के तजर्बात के आगाज़ के साथ भी मुवाफ़िक था, जिसके नतीजे में बलाखिर कोरिया और वियतनाम में अमरीकी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। 1968 तक, जिस साल मैंने NSA के साथ इंटरव्यू किया, ये वाज़ेह हो गया था कि अगर अमरीका आलमी सल्तनत के अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है, जैसा कि सदर जॉनसन और निक्सन जैसे मर्दों ने तस्वर किया था, उसे रोजवेल्ट की ईरानी तर्ज हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करना होगा। एटमी जंग के खतरे के बगैर सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का यह वाहिद तरीका था। A symbiotic relationship developed between governments, corporations, and multinational organizations. By the time I enrolled in Boston University's business school, a solution to the Roosevelt's as CIA agent problem had already been worked out. US intelligence agencies, including the NSA, would identify prospective EHMs who could then be hired by international corporations. These EHMs would never be paid by the government, instead, they would draw their salaries from the private sector. As a result, their dirty work, if exposed, would be chalked up to corporate greed rather than to government policy. हुकूमतों, कॉरपोरेशंस और कसीरुल कौमी तंजीमों के दरमियान एक अलामती ताल्लुक़ पैदा हुआ। जब तक मैंने बूस्टन यूनिवर्सिटी के बिज़नेस स्कूल में दाखिला लिया, उसका एक हल रोजवेल्ट बतौर CIA एजेंट का मसला पहले ही हल हो चुका था। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बशमूल NSA मुमकिन EHMs की निशानदेही करती, जिन्हें फिर बैनुल अक़वामी कॉरपोरेशंस की खिदमत हासिल की जा सकती थी। इन EHMs को हुकूमत कभी अदा नहीं करती, इसकी बजाय वो अपनी तनख्वाह निजी शोबे से हासिल करते। नतीजतन अगर उनके घिनौने काम को बेनकाब किया जाए, तो हुकूमती पॉलिसी के बजाय कॉरपोरेट लालच पर आड़े आएंगे। In addition, the corporations that hired them, although paid by government agencies and their multinational banking counterparts with taxpayer money, would be insulated from congressional oversight and public scrutiny, yielded by a growing body of legal initiatives, including trademarks, international trade, and freedom of information laws. So you see, Claudine concluded, we're just the next generation in a proud tradition that began back
when you were in first grade. मज़ीद ये कि वो कंपनियां जिन्होंने इन लोगों को मुलाजमत पर रखा, हालांकि इन्हें सरकारी एजेंसियां और बड़े बैनुल अक़वामी बैंकों जो आप जैसे टैक्स पेयर्स से आता है की रकम से अदा किया गया था, कांग्रेस और अवाम की तरफ से देखे जाने या जांचे जाने से महफूज रहेंगी। ये कंपनियां जो इन लोगों को मुलाजमत पर रखती हैं वो मुख्तलिफ कवानीन जैसे ट्रेडमार्क, बैनुल अक़वामी तिजारत और मालूमात की आज़ादी के कवानीन के ज़रिए महफूज है। तो अब आप समझे, क्लाइडन ने कहा हम एक दरीना रवायत की पैरवी कर रहे हैं जो इस वक्त शुरू हुई जब आप पहली जमात में थे। So here this chapter ends. Thanks for watching. Subscribe AFW Mentor for more videos.